لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن شہید ہو کر حضرت عثمان کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جنت میں اللہ کا قرب خاص پائیں گے۔ پھر انہوں نے پوچھا اے ابو الحسن یہ قاتل لوگ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا اللہ کی قسم دوزخ میں جائیں گے۔ دیکھیں یہ صحابہ تھے، یقین کریں زندگی گزار گئے ہیں، اللہ کی قسم ہم اچھی زندگی گزاریں چاہے نارمل زندگی گزاریں، گزر تو جانی ہے، گزر تو جانی ہے، کیوں نہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ کی قسم جو بندہ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گیا وہ ہی پورا کامیاب ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گیا میرے بھائیوں اس کو ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ بے شک رحیم ہے، اللہ بے شک کریم ہے، اللہ بے شک بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، مگر اللہ جتنا رحیم ہے اتنا بے نیاز بھی ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم پیچھے جو 2 ویڈیو ہماری گزری ہیں اس کے اندر ہم نے آپ سے براہ راست بات کی تھی، اور مجھے امید ہے آپ ویڈیو میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو سیکھنے کو ملی ہوں گی، اور آج ہم جو پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت کرنا۔ دیکھیں جو صحابہ کسے پڑھنا ہے، سننا اور سنانا، اس کا یہی مقصد ہے کہ یار ہماری بھی تھوڑی کر کے زندگی ان حضرات جیسی یہ زندگی گزار گئے ہیں، ہماری زندگی بھی ایسی بن جائے۔ دیکھیں ہم صحابہ نہیں بن سکتے مگر ہم ان کے نقش قدم پہ ضرور چل سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم کسی بھی صحابی کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ فلاح کو پہنچ جائیں گے۔ تو آج ہم جن کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن فضل کی والدہ کہتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے خزانے کی تلاشی لی تو اس میں ایک صندوق ملا جسے تالا لگا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ ملا جس میں یہ وصیت لکھی ہوئی تھی۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن غفان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور اللہ تعالی اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اسی شہادت پر عثمان زندہ رہا، اسی پر مرے گا، اور اسی پر انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نظام الملک نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ لوگوں نے اس کاغذ کی پشت پر لکھا ہوا دیکھا، دل کا غنا آدمی کو غنی بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے بڑے مرتبے والا بنا دیتا ہے، اگرچہ یہ غنا اسے اتنا نقصان پہنچائے کہ فقر اسے ستانے لگے۔ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم اس پر صبر کرو، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ جو زمانہ کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے کبھی غم خواری کے مزے کا پتہ نہیں چل سکتا۔ زمانے کے حوادث پر ہی اللہ نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ جو مشکلوں پر صبر کرے گا اللہ نے اسے کو سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ سخت ہو گیا تو آپ نے لوگوں کی طرف جان کر فرمایا، اے اللہ کے بندو، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا ہوا تھا، اپنی تلوار گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ ان سے آگے حضرت مہاجرین و انصار کی ایک جماعت ہے جن میں حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ان حضرات نے باغیوں پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیا، اور پھر یہ سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن غفان کے پاس ان کے گھر گئے تو ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की बुलंदी और मजबूती इस वक्त हासिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानने वालों को साथ लेकर ना मानने वालों को मारना शुरू कर दिया। और अल्लाह की कसम, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि ये लोग आपको कत्ल कर देंगे, लिहाजा आप हमें इजाजत दें ताकि हम उनसे जंग करें। इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो आदमी अपने ऊपर अल्लाह का हक मानता है और इस बात का इकरार करता है कि मेरा इस पर हक है, इसको मैं कसम देकर कहता हूँ कि वो मेरी वजह से किसी एक संगी पर भी खून ना बहे और अपना खून बहाए। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं कसम देकर कहता हूँ कि मेरी वजह से किसी एक का भी खून ना बहाओ और ना अपना बहने दो। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बात दोबारा अर्ज की और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वही जवाब दिया। रावी कहते हैं, मैंने हज़रत अली को देखा कि वो हज़रत उस्मान के दरवाजे से निकलते हुए यह फरमा रहे थे, ए अल्लाह, आप जानते हैं कि हमने अपना सारा जोर लगा लिया है। फिर हज़रत अली मस्जिद में दाखिल हुए और नमाज का वक्त हो गया। लोगों ने हज़रत अली से कहा, ए अबुल हसन, आगे बढ़े और नमाज पढ़ाएं। उन्होंने कहा, इमाम के घर का मुहासरा क्या हुआ है, मैं इस हाल में तुम लोगों को नमाज नहीं पढ़ा सकता, मैं तो अकेले नमाज पढ़ूंगा। चुनाचा वो अकेले नमाज पढ़कर अपने घर चले गए। पीछे से उनके बेटे ने आकर खबर दी, ए अब्बा जान, अल्लाह की कसम, वो बागी लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस गए हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की कसम, वो लोग तो उनको कत्ल कर देंगे। लोगों ने पूछा, ए अबुल हसन, शहीद होकर हज़रत उस्मान कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा, जन्नत में अल्लाह का कुर्ब खास पाएंगे। फिर उन्होंने पूछा, ए अबुल हसन, ये कातिल लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने 3 दफा कहा, अल्लाह की कसम, दोज़ख में जाएंगे। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बागियों ने मुहासरा किया हुआ था। इतने में हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और साहिब इनके साथ हज़रत उस्मान के पास उनके घर गए। दोनों ने हज़रत उस्मान से हज की इजाजत मांगी। उन्होंने हज की इजाजत दे दी। दोनों ने हज़रत उस्मान से पूछा कि अगर ये बागी गालिब आ गए तो हम किसका साथ दें? हज़रत उस्मान ने फरमाया, मुसलमानों की आम जमात का साथ देना। उन्होंने पूछा, अगर गालिब आकर ये बागी ही मुसलमान की जमात बना ले तो फिर हम किसका साथ दें? हज़रत उस्मान ने कहा, मुसलमानों की आम जमात का ही साथ देना, वो जमात जिनकी भी हो। रावी कहते हैं, हम बाहर निकले। रावी कहते हैं, हम बाहर निकलने लगे तो हमें घर के दरवाजे पर हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने से आते हुए मिले, जो हज़रत उस्मान के पास जा रहे थे। तो हम उनके साथ वापस हो गए तो सुने कि हज़रत उस्मान से क्या कहते हैं। उन्होंने हज़रत उस्मान को सलाम करके कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप जो चाहे मुझे हुक्म दे। इस पर हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैं मेरे भतीजे वापस चले जाओ और अपने घर बैठ जाओ, जहाँ तक कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं उसे वजूद में ले आए। चुनाचा हज़रत हसन भी और हम भी हज़रत उस्मान के पास से बाहर आ गए तो हमें सामने से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हुए मिले। वो हज़रत उस्मान के पास जा रहे थे तो हम भी उनके साथ वापस हो गए कि सुने ये क्या कहते हैं। चुनाचा उन्होंने जाकर हज़रत उस्मान को सलाम किया और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा और उनकी हर बात मानता रहा। फिर मैं हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहा, उनकी पूरी तरह फरमाबरदारी की। फिर मैं हज़रत उमर के साथ रहा, उनकी हर बात मानता रहा और मैं उनका अपने ऊपर दोहरा हक समझता था, एक वालिद होने की वजह से और एक खलीफा होने की वजह से। और अब मैं आपका पूरी तरह फरमाबरदार हूँ। आप मुझे जो चाहें हुक्म दें, मैं इसे इंशाअल्लाह पूरा करूँगा। इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए आले उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला तुम्हें दुगनी जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे किसी के खून बहाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी का खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ घर में महसूर था। हमारे एक आदमी को बागियों की तरह से तीर मारा गया।
उस पर मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्योंकि इन्होंने हमारा एक आदमी कत्ल कर दिया है, इसलिए अब इनसे जंग करना हमारे लिए जायज हो गया। हज़रत उस्मान ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूँ कि अपनी तलवार फेंक दो, वो लोग तो मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी जान देकर दूसरे मुसलमानों की जान बचाना चाहता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान पर मैंने अपनी तलवार फेंक दी और अब तक मुझे खबर नहीं कि वो कहाँ हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये हमने पढ़ा है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसीयत करना। तो मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी सीखने को मिली होंगी। देखिए, ये सहाबा थे, यकीन करें, जिंदगी गुजार गए हैं। अल्लाह की कसम, हम अच्छी जिंदगी गुजारें चाहे नॉर्मल जिंदगी गुजारें, गुजर तो जानी है, क्यों ना अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजारें। अल्लाह की कसम, जो बंदा अल्लाह को राजी करके दुनिया से चले गया वो ही पूरा कामयाब है, और जो अल्लाह को नाराज करके दुनिया से गया, मेरे भाइयों, उसको डरना चाहिए। देखें, अल्लाह बेशक रहीम है, अल्लाह बेशक करीम है, अल्लाह बेशक बख्शने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, मगर अल्लाह जितना रहीम है उतना बेनियाज भी है। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, अल्लाह के यहाँ ईमान का सिक्का चलता है। देखें, फिरऔन 16 लाख लश्कर के साथ गर्क हुआ था। अल्लाह कहते मुझे एहसास भी नहीं हुआ, और वहां साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, अल्लाह का अर्श कांपने लगा। क्यों? उनके अंदर ईमान था। मेरे भाइयों, अपने ईमान को बनाने की मेहनत हो, दावत दें, तौबा करें, तौबा करवाएं, नेक बने, लोगों को नेक बनवाने में उनकी मदद करें। मुझे उम्मीद है आपकी इस वीडियो में बहुत कुछ चीजें मुझे सीखने की मिली होंगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने क्या वसीयत की थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ इस तरह की नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। जाते हुए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच रहे। अल्लाह हाफिज़।